Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Pisces Ascendant and the predictions for the month of July 2023. So for your ascendant, Jupiter is the ascendant lord which is currently passing through the second house, and Rahu is also present here. Now the ascendant lord presence in the second house is considered extremely good from the wealth generation point of view, and further second house natural signification also belongs to Jupiter. In this case, what is happening is Rahu sitting here with Jupiter is spoiling the natural significations of Jupiter, and as a result, all those people who want to see a growth in their savings will only see them after the month of October has passed. So time frame from November to April 2024 will be extremely good from the savings or the finance point of view. Jupiter will also start to provide you its full result and growth at the professional front end service only from November, because it is going to aspect both the sixth house as well as 10th house. Both the houses are indicated to your professional domains and to service, and sixth house also indicates the money of your customer. So all of these things will only come from November to April time frame after Rahu moves out of the second house. In the month of July as well, you are going to see conflicts at the workplace because Rahu in the second house is going to have an impact on your speech. So just be very careful till 10th of July about whom you speak to in your professional domain, and Rahu's presence here is going to make sure that your speech may end up creating some enemies for you. So just be cautious on this front and use your speech very wisely. In this month of July, the sixth house is also seeing a conjunction of Venus and Mars, and both are considered as natural partners. You are going to see a very good health starting from 11th of July to the end of this month. And if you want to take any kind of a decisions that are going to have a long-term impact on you, I would suggest that you postpone them and take them only after 11th of July. Sixth house also represents job. So again, the time frame from 11th July onwards till the end of the month is extremely good from making progress on the work front. All those people who are a business will also see a prosperous month, and the time frame from 11th to 24th of July is going to be very favorable for them as far as progress in the business is concerned. Your fifth house is ruled by moon, and moon changes its houses and positions very quickly. So if you're a student, then the best time to appear for competitive exams in the month of July will be on 9th and 10th of July, and then again on 18th and 19th of July. And if you happen to be a speculator or a person who deals in stock market, I don't see many Pisces ascendant people engaging in speculation. But if you do, then time frame from 4th to 6th of July is going to be very favorable for you to reap gains from the stock market. See, most of the Pisces ascendant people are religious and spiritual people, and the good part that is going to happen to them starting from January 23 till September 25 is the presence of Saturn in the 12th house. This transit of Saturn in the 12th house is considered exceptionally good to make progress on the higher dimensions of spirituality. Saturn in itself hates the material world, and that is why the traits that are assigned to Saturn are extremely opposite to that of Venus. Venus loves all that is wealth, and Saturn loves everything that is downtrodden and poor, and that's why spirituality as a factor gets associated with Saturn. So this Saturn's presence in 12th house is going to allow you to progress on the higher dimensions of spirituality, and that is something which comes naturally to your ascendant people. This is also a very good time for you to engage yourself in charity and spend your time with NGO. And if you stay in a multi-storied apartment or you have your own house, you should try to clean all the junk that is present in your house, especially the one that is on the roof of your house. Some of the houses also have extended roofs where people store all the, I won't really say garbage, but all the things that are old and are of no use to them, so they should also discard them. All of this is going to be very helpful for you to drive out the negative energies of Saturn,
and at the same time this presence of Saturn in the 12th house is going to help you to excel in the realm of spirituality. So in the month of July you need to remain a bit careful only till 10th of July. Time frame from 11th of July to the end of month is going to be extremely good for you to progress on the work front. And all those people who are in service or business, they will also see a lot of accolades coming to them during this time frame. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मीन लग्न वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लग्नेश की बात करें तो लग्नेश गुरु द्वितीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं। ये यहाँ पे अप्रैल 2023 में आए थे और अप्रैल 2024 तक यहीं बने रहेंगे। अभी जो चीज आप लोगों के लग्न के फेवर में नहीं है वो ये है कि गुरु और राहु की युति हुई थी मई के महीने में, और राहु का प्रभाव गुरु पर बना रहेगा जब तक ये इस भाव को छोड़कर नहीं चले जाते। तो अक्टूबर अंत तक के समय ऐसा रहेगा जब तक राहु गुरु पे अपना प्रभाव डालते रहेंगे, और इसीलिए जितनी भी चीज़ों का कारकत्व गुरु के हाथ में उन सब पर राहु अपना प्रभाव छोड़ेगा। अब जब भी लग्नेश द्वितीय भाव से जाता है स्थिति बहुत अच्छी कहलाती है क्योंकि ये धन दायक होता है इस तरह का प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर गुरु स्वयं ही द्वितीय भाव का कारक है, तो व्यक्ति की सेविंग्स पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा। अगर गुरु यहाँ अकेला बैठा होता तो व्यक्ति की सेव करने की क्षमता में, बचत करने की क्षमता में काफ़ी इजाफा होता। गुरु यहाँ पर काफ़ी लिक्विड कैश व्यक्ति को ला कर देता। लेकिन ये स्थिति राहु के होने की वजह से उस तरह का परिणाम नहीं देगी। जो आपको असल में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा ये 1 नवंबर के बाद से ही होगा, और 1 नवंबर से लेके अप्रैल 2024 तक जब तक गुरु यहाँ पर अकेला बैठा रहेगा तो आपके लिए सेविंग्स के नए नए दरवाजे खुलेगा पैसा बचाने के। इसके अलावा गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी 6वें और 10वें भाव पे पड़ती है, तो दोनों ही भाव का संबंध आपके कर्म स्थान से है। 10वें भाव से तो आप अपना सारा पूरा कर्म ही देखते हैं, लेकिन 6वें भाव से भी आप सर्विस देखते हैं। तो जितने भी लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी नौकरी में ग्रोथ नवंबर के बाद ही आती हुई दिखेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पूर्णतः अपना परिणाम उसके बाद ही दे पाने में सफल होगी। नहीं तो राहु यहाँ पर बैठकर गुरु की दृष्टि को भी कलुषित करता रहेगा अक्टूबर के अंत तक। अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो आपको अपने कार्यस्थल पर भी कुछ तनाव वाले मौके देखने को मिलेंगे 10 जुलाई तक। यहाँ पर महीने के पहले 10 दिनों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसके साथ क्या बात करते हैं और कब बात करते हैं। राहु की प्रेजेंस जो द्वितीय भाव में है, तो ये आप जब भी लोगों से बात करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं या आप उनके खिलाफ कुछ चाल करने की सोच रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक लोगों से बात करनी पड़ेगी और लोगों से किसी भी तरह का मनमुटाव या टकराव टालना पड़ेगा अपने कार्यस्थल पर। कम से कम 10 जुलाई तक तो बहुत ही सावधान रहिए। 11 जुलाई से लेके महीने के आखिरी तक का समय ऐसा है जब आप अपने कार्यस्थल पर प्रगति कर सकते हैं। चाहे आपका जॉब है चाहे बिजनेस है, इन दोनों में ही आपको अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। इस महीने में 6वें भाव में शुक्र मंगल की युति हो रही है। शुक्र और मंगल दोनों को ही नैसर्गिक पार्टनर्स कहा जाता है। इनका हमेशा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बना रहता है। तो यहाँ पर 6वें भाव में एक अच्छा परिणाम देंगे, तो आपको 11 जुलाई से सेहत में भी सुधार होते हुए दिखेगा, खास करके आप बड़ी उम्र के हैं तो। और ये पूरा महीना 11 जुलाई से लेके महीने के आखिरी तक का बहुत फेवरेबल है आपके लिए। अगर आप कोई भी ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जिसके आपके जिंदगी पर दूरगामी परिणाम पड़ेंगे तो वो भी आप 11 जुलाई के बाद ही लीजिए। उसके पहले कोई निर्णय लेना आप टालिए। 6वें भाव से चूंकि आप नौकरी देखते हैं तो आपके लिए कार्यस्थल पर भी बहुत अच्छा समय रहेगा 11 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक का। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो 11 से 24 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है अपने बिजनेस में कुछ नए बदलाव करने के लिए, या अगर आप तरक्की करना चाहते हैं बिजनेस में तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतरने का जो समय है वो 9 और 10 जुलाई का बहुत अच्छा समय है, और 18 से लेके 20 जुलाई तक का समय भी बहुत अच्छा है। और अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, मैं बहुत सारे मीन लगने के लोगों को
नहीं देखता हूँ ज़्यादातर शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये लोग बहुत धार्मिक स्वभाव के लोग होते हैं। शेयर बाजार का संबंध मोस्टली शुक्र की अगर राशि पड़ रही हो द्वितीय भाव में, तो ज़्यादातर लोग इस तरह के प्रोफेशंस में उतरते हैं। और राहु का भी अगर प्रभाव पड़ जाए पंचम भाव पे तो फिर क्या ही कहना। तो यहाँ पे अगर आप मीन लगने के हैं और फिर भी शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो 4 से 6 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है आपको अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे स्पेक्यूलेशन में तरक्की करने के हिसाब से। देखिए, बहुत से मीन लगने के लोग धार्मिक होते हैं और उनका जो स्वभाव होता है वो स्पिरिचुअल होता है, यानी कि आध्यात्म में प्रगति करने वाले आप लोग होते हैं। जो एक चीज़ आपके फेवर में बन रही है वो ये है कि शनि 12वें भाव में भ्रमण करते रहेंगे सितंबर 2025 तक। तो शनि का बहुत गहरा संबंध है स्पिरिचुअलिटी से या साधना या अध्यात्म से। तो जितने भी लोग आप में से इस तरफ जिनका भी झुकाव है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जब तक शनि यहाँ बैठा हुआ है आप लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल लेवल पे प्रोग्रेस करने के दरवाजे खोलता रहेगा और आप काफ़ी अध्यात्म में प्रगति कर पाएंगे सितंबर 2025 तक। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी दान पुण्य का काम करते हैं, चैरिटी से आपका संबंध है, तो आप कहीं पर भी एनजीओ के साथ जुड़ के अपना समय अपनी सेवाएं दे सकते हैं, तो भी ये शनि आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देके जाएगा अगले 2 सालों में। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जिसमें एक टांड जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम सारा अपना कबाड़ या पुरानी चीज़ें फेंक देते हैं, या कई लोगों के घर में इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं तो छत पे अपना पुरानी सामान डंप कर देते हैं, तो उसको भी आप हटाने का अगर कार्य करते हैं इन 2 सालों में धीरे धीरे करके भी, तो भी आपके घर से काफ़ी हद तक नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी और आपको काफ़ी चीज़ें सुधरते हुए दिखेंगे अपने जीवन में। तो इस तरह का भी आपको कचरा साफ करने का प्रयत्न करना चाहिए अगले 2 सालों में। एक साथ ना भी कर पाए, समय ना मिले, तो भी धीरे धीरे करके अगर करते हैं तो भी ये एक तरह से शनि को बल देने के जैसा हो जाएगा। तो अगर आप जुलाई के महीने में देखेंगे तो जो पहले 10 दिन हैं उनको अगर आप छोड़ दें तो 11 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है अध्यात्म में प्रगति करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र पर प्रगति करने के लिए। फाइनेंस वाइज भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।